Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ankita and I'm going to explain you line by line for biology NCERT. So in my previous videos I have covered till here cytokine barrier. That is, in my previous video I have explained about the immunity. That immunity is of two types. That first one is the innate immunity and the second one is acquired immunity, right? What's the basic difference between these two? Innate immunity is that immunity which we get by birth, right? And acquired immunity क्या होती है? Acquired immunity that we gain during the time of our life. ठीक है, जो लाइफ में हम एक्वायर करते हैं दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो हमारे पास बाय बर्थ होती है दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी, right? Okay, so firstly, before starting today's topic, I have explained about the innate immunity in detail, that there are four parts, that is physical, psychological and cellular barriers as well as cytokine, whereas acquired immunity we will cover in today's video. So if you have not watched the previous videos, do watch that. I have provided the link in the description box, you can see from there, and then join this video. Okay, before starting the video I would like to ask you some questions. The very first question is, and you have to write the answer in the comment box, right? And if you do not understand it, then please ask me in the comment, or you can also Instagram me. Okay, so the very first question is that skin as well as mucus coating is a part of which innate immunity? Innate immunity फोर टाइप्स की थी बेसिकली. कौन कौन सी थी? द वेरी फर्स्ट इज फिजिकल बैरियर, देन physiological barrier, after that cellular barrier, and then cytokine. So skin and mucus is part of which type of innate immunity? किस टाइप की innate immunity का है? Okay, this you have to answer me in the comment section. Next is that if I ask that who produces this chemical messenger, like we have studies in the cytokine barriers that there are the chemicals which is produced and they act as a messenger. So basically कौन उसको produce करता है? That chemical called as cytokine. Look this one here, this cytokine barrier, right? In cytokine barrier we have read a term called as interferon. So interferon is that chemical which was produced by, तो कौन प्रोड्यूस करता है? सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू आंसर. इंटरफेरॉन्स, ये तो सबको पता है ना, इंटरफेरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स. बट इंटरफेरॉन्स से प्रोड्यूस्ड बाय, कौन इसे प्रोड्यूस करता है? राइट, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स करते हैं इसे प्रोड्यूस, या फिर जो वायरस इन्फेक्टेड अभी नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर, दैट व्हाट एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर, राइट? तो सेलुलर बैरियर किसकी वजह से है? सेलुलर बैरियर इज बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से सेलुलर बैरियर होता है? राइट, दिस यू हैव टू आंसर. एंड देन यू हैव टू आंसर दैट HCl इन स्टमक whereas tears in eyes, they are the example of which kind of innate immunity, whether it is example of the physical immunity or it is a type of the physiological, cellular or cytokine. So firstly you have to answer this so that at least you'll be able to remind and then answer me in the comment. Okay, so today we have to start from here, that is acquired immunity. What is acquired immunity? Look, मैंने आपको बेसिक क्या बताया था? The basic was that there are two type of immunity, innate immunity and acquired immunity, correct? I'm rubbing these questions. I hope you people have already answered me in the comment section, and if you have any doubt you can message me on my Instagram as well as here also in the comment section. Okay, so basically the basic difference that we have to understand is this. इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास बाय बर्थ थी, ठीक है? अगर ये बाय बर्थ है तो इसका जो बिहेवियर होता है प्रोटेक्शन का वो सबके लिए सेम होता है, चाहे बैक्टीरिया ए आए चाहे बी आए. ये कैसे? अगर मैं इफ़ आई टेक द एग्जांपल ऑफ स्किन, तो स्किन क्या एक बैरियर की तरह बिहेव करता है? ऐसा तो नहीं होगा फॉर ए इट विल बिहेव एज अ बैरियर वेयर इट इज़ नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ बैरियर फॉर द बी. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो दोनों को ही वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, उसकी एंट्री को इनहिबिट कर रहा है, राइट? तो इट मीन्स स्किन जो है वो कोई सा भी ए आई बी आई सी आई डी ए कोई सा भी अगर XYZ बैक्टीरिया आता है तो उन सब के लिए उसका सेम रिस्पॉन्स होता है. दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी. कैसी होती है? इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, राइट? एंड इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप. वेज एक्वायर्ड कैसी होती है? एक्वायर्ड होती है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक मतलब क्या है? अगर ये इम्यूनिटी ए के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया है, अगर हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम ने ए पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई है,
तो ये सेम जो एंटीबॉडी होगी, लेट्स टेक उसने बी एंटीबॉडी स्मॉल बी बनाई, तो जो बी पैथोजन आएगा उसके लिए ये बी एंटीबॉडी वर्क नहीं करेगी, इसके लिए दूसरी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी, दैट विल बी ए। इट मीन्स दैट जो बैक्टीरिया या जो पैथोजन एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होता है, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है वो प्रोड्यूस होती है। इट मीन्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो कैसी है, स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक है, ए के लिए अलग प्रोड्यूस कर रही है, बी के लिए अलग। ऐसा नहीं कि ए आई बी आई सी कोई सा भी है उन सबके लिए सेम होगा, राइट। तो दैट इज वाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी होती है, स्पेसिफिक, एज इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, राइट। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट तो क्या आ गया पॉइंट कि पैथोजन स्पेसिफिक होती है, राइट। ए के लिए अलग बिहेवियर होगा, बी के लिए अलग बिहेवियर होगा, राइट। नाउ इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम इज दिस, दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, मेमोरी, राइट। मेमोरी क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मतलब मैंने आपको वैक्सीन में समझाया था कि वैक्सीनेशन के टाइम हम क्या करते हैं, जो वीक पैथोजेंस होते हैं उनको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब क्योंकि वो वीक पैथोजेंस हैं तो वीक हमारी बॉडी में जाके हमें इन्फेक्शन तो नहीं कॉज करेगा, बट हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी एंड विल प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, राइट। और उसके बाद क्या होगा, वो मेमोरी की तरह उसके इमेज में स्टोर हो जाएगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा वो उसको स्टोर कर लेगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम सेम जब भी पैथोजन एंटर करेगा तो उसके लिए कैसे करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगा। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, बेसिकली वो ज़्यादा इंटेंस होता है, राइट। इंटेंस मतलब वो बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाएगा और जो एक्चुअल पैथोजन आया, एक्चुअल इन्फेक्शन हुआ है, उसको वो क्योर करने में हेल्प करेगा, राइट। सो वो ऐसा हो क्यों पा रहा है, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में क्या है, मेमोरी है, राइट। अगर एक बार किसी पैथोजन से मिल गया तो वो हमेशा उसको लाइफ टाइम याद रखता है, अगर दूसरी बार वो सेम पैथोजन एंटर करेगा तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, राइट। नाउ दिस मीन व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब हमारी बॉडी पहली बार किसी पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आती है, इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली रिस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड दूसरा क्या होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, राइट। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होता है, बेसिकली सेकेंडरी रिस्पॉन्स तब होता है जब दूसरी बार वो सेम पैथोजन एंटर करता है, जब सेकेंड टाइम वही सेम पैथोजन एंटर करेगा तो उस बॉडी इसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, सो दैट विल बी सेकेंड रिस्पॉन्स। और पहली बार जब कोई पैथोजन एंटर करता है तब हमारी बॉडी थोड़ी सी एंटीबॉडीज बनाती है, राइट, बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती है, इसलिए क्या होता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, इट इज़ ऑफ द लो इंटेंसिटी। तो मार्क दिस थिंग कि पहली बार जब एनकाउंटर होता है तो हमारी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स, राइट। एंड जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, उस प्राइमरी रिस्पॉन्स की क्या है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। देन सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। अब क्या बताया उसने, जब पहली बार तो मैंने इसको बता दिया कि ठीक है प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ और प्राइमरी रिस्पॉन्स की कैसी थी, इंटेंसिटी लो थी। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर मतलब क्या होता है, दोबारा से जब एनकाउंटर होता है, मतलब दोबारा से जब वही सेम पैथोजन जब एंटर करता है, वही वाला जो पहले आया था, इट एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। हाईली इंटेंसिफाइड मतलब क्या है, जब सेकेंड टाइम वो सेम पैथोजन आया तो हमारी बॉडी ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया और फिर इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाई। तो इसलिए कैसी होती है, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, हाईली इंटेंसिफाइड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, राइट। तो इस रिस्पॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, राइट। रिमेंबर दीज टू टर्म्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। कभी कभी आपसे सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टर्म में नहीं पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा कि एमनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है, तो सेकेंडरी को अपन क्या बोलते हैं, एमनेस्टिक होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होता है, प्राइमरी पहली बार आया तो उतनी ज़्यादा एंटीबॉडी बना नहीं पाया, तो लो इंटेंसिटी थी, लेकिन जब सेकेंड टाइम वही पैथोजन आया तो हाईली इंटेंसिफाइड था, मतलब बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाई, राइट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद दिस इज डिस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव अ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी में जब पहली बार कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसकी मेमोरी बन जाती है और मेमोरी स्टोर हो जाती है, करेक्ट, ओके। नाउ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, बेसिकली दो लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एज वेल एज टी लिम्फोसाइट। पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराती हूँ पहले, WBC कितने टाइप के होते हैं, राइट, क्योंकि WBC को अपन क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट। तो जो WBCs होते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं,
जो WBCs होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यू पीपल ऑल्सो हैव टू राइट इट डाउन, राइट. सो WBC इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. एंड दीज ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं WBC, ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है ग्रैनुलर मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर, राइट. अगर स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर. और दूसरा कौन सा होता है, ए ग्रैनुलर. ये जो WBC है उसी के टाइप है, ठीक है. ए ग्रैनुलर मतलब क्या होगा कि जिसमें से छोटे छोटे से ऐसे दाने जैसे नहीं होंगे, राइट. तो ये ए ग्रैनुलर हो जाता है. अभी जो ग्रैनुलर WBC होते हैं इसके फर्दर 3 टाइप होते हैं. कौन कौन सा होता है, सबसे पहला ईओसिनोफिल, देन क्या होता है बेसोफिल, एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल. ठीक है. ये क्या है, ये WBC है. कौन से WBC, जिनके स्ट्रक्चर में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. फिर ए ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं, ए ग्रैनुलर, ये 2 टाइप के होते हैं. पहला क्या होता है, मोनोसाइट होता है, एंड अनदर वन इज लिम्फोसाइट. तो अभी अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिम्फोसाइट के बारे में. बट आपको ये याद रखना कि WBC के 2 पार्ट होते हैं. WBC को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, राइट. एंड ये ग्रैनुलर, ए ग्रैनुलर 2 टाइप के होते हैं. ग्रैनुलर फिर से 3 टाइप के होते हैं, ईओसिनोफिल होता है, बेसोफिल होता है, एंड न्यूट्रोफिल होता है. वेयर एज ए ग्रैनुलर 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट होता है एज वेल एज लिम्फोसाइट, राइट. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ऑफकोर्स जब आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या किया बॉडी ने जो पैथोजन आया उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई. तो यही तो रिस्पॉन्स है, राइट. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ. अब ये जो रिस्पॉन्स होता है ये किसकी वजह से आता है, ये एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करता है. सो बेसिकली दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पेशल सेल्स. कौन कौन से होते हैं, पहला बी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड इज टी लिम्फोसाइट्स, करेक्ट. लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, पहला ए लिम्फोसाइट होता है, दूसरा कौन सा होता है, पहला होता है बी लिम्फोसाइट एंड नेक्स्ट कौन सा होता है, टी लिम्फोसाइट, राइट. तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. एक चीज़ याद रखना, जो बी लिम्फोसाइट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या करने के लिए, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी. एंटीबॉडी को बनाने का काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट. वेर एज जो टी लिम्फोसाइट होता है ये कभी एंटीबॉडीज बनाता नहीं, ये सिर्फ हेल्प करता है. ये हेल्प करता है किसकी, बी लिम्फोसाइट की. किस चीज़ में हेल्प करता है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, करेक्ट. तो याद रखना कि कभी भी टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते नहीं. टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो बी की हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज, राइट. अगेन इंपॉर्टेंट नेक्स्ट थिंग क्या है इसमें, दैट ये जो बी लिम्फोसाइट हमने लिखा हुआ है, दिस टी लिम्फोसाइट, इसमें ये टी क्या है, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाता है दैट व्हाट इज टी इन द टी लिम्फोसाइट. तो वो टी क्या है, बेसिकली इट इज थाइमस. ये क्या है, थाइमस. तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है टी लिम्फोसाइट में टी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टी क्या है यहाँ पे, बेसिकली थाइमस है, राइट. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस. आफ्टर दिस द बी लिम्फोसाइट, अब देखो आपको यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है. द बी लिम्फोसाइट्स produce an army of protein in response to the pathogen into our blood to fight with them. मतलब बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, बना रहा है. किसको बना रहा है, आर्मी ऑफ प्रोटीन. आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या है, बेसिकली आर्मी ऑफ प्रोटीन मतलब एंटीबॉडीज़. क्योंकि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी जो होती है वो एक तरीके की प्रोटीन होती हैं. तो बी लिम्फोसाइट के आर्मी क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारी, आर्मी का काम क्या होता है, फाइट करना. तो ये जो एंटीबॉडीज़ बन रही है वो भी तो फाइट कर रही है, तो ये उसको बोलती है आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, राइट. इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम. जैसे हमारे ब्लड में कोई पैथोजन आया तो उसके अगेंस्ट क्या किया, बी लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी. नाउ दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडी. तो अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम होता है आपसे पूछा जाता है दैट एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या होती हैं. एंटीबॉडीज आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, क्या है. तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं. एंड नॉट ओनली प्रोटीन बल्कि एंटीबॉडीज जो होती हैं दैट इज योर ग्लाइकोप्रोटीन. आगे इसको मेंशन कर लेना. एंटीबॉडीज क्या होती हैं, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन, करेक्ट. रिमेंबर दिस थिंग. क्या होती है एंटीबॉडीज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं. नाउ द टी सेल्स themselves do not secrete any antibody. Remember, T cells खुद कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है बट ओनली हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस दैम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अपन को मार्क करना है कि बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है किसको, आर्मी ऑफ प्रोटीन. आर्मी ऑफ प्रोटीन क्या है, बेसिकली दैट इज योर एंटीबॉडीज, करेक्ट. एंड जो टी लिम्फोसाइट होता है, दिस टी लिम्फोसाइट, ये कभी भी डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज, बनाता नहीं है, बस बी की हेल्प करता है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट. ओके. देन ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन. अब क्या है
जो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है उसके बारे में आपको बता रहे स्ट्रक्चर के बारे में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। रिमेंबर एनसीईआरटी का एक एक डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। तो देखो क्या होता है, आप इसमें देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में ये कैसी हैं, दो चेन काफ़ी लंबी हैं, राइट। तो ये जो दो लंबी चेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हैवी चेन्स, दीज आर कॉल्ड एज हैवी चेन्स, करेक्ट। और ये जो छोटी छोटी सी अपन देख रहे हैं ये कैसी होती हैं, दीज आर कॉल्ड एज लाइट चेन। तो रिमेंबर आपसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर से बना के दे देगा और यहाँ पे ब्लैंक कर देगा, बस पता ऐसे मार्क कर देगा कि टेल मी ये क्या चीज़ है। तो यू हैव टू रिमेंबर ये जो लंबे से देखे रखे दीज आर हैवी चेन, जो स्मॉल साइज के देखे रखे दे आर लाइट चेन। देन यहाँ से क्या होता है, ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। एंटीबॉडी जहाँ पे एंटीबॉडी किससे अटैच होती है जाके, जैसे ये अगर मेरे पास कोई पैथोजन आया तो एंटीबॉडी एक्चुअली उसकी बॉडी पे ही जाके अटैच हो जाएगी, राइट। तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन से, एंटीजन क्या होता है, वही पैथोजन, राइट। तो एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन से जहाँ से जुड़ती है उस साइड को क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो यहाँ से जुड़ती है, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, करेक्ट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट क्या है, अगेन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है, जो लाइट चेन होती है एज वेल एज हैवी चेन, दिस इज लाइट चेन, दिस इज हैवी चेन, राइट। तो लाइट चेन और हैवी चेन आपस में जुड़ी होती है किस बॉन्ड के थ्रू, तो दे आर connected together with the help of disulfide bond. Remember this term disulfide, करेक्ट। डाइसल्फाइड क्यों, क्योंकि दो सल्फर के थ्रू जुड़ा है ना, ये देखो दो सल्फर है, तो दो सल्फर के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। सिर्फ लार्ज जो चेन होती है स्मॉल चेन वही नहीं जुड़ी होती है, जो लार्ज चेन से भी किससे जुड़ी होती है, विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, राइट। ये भी किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक। अगेन जो नेक्स्ट अपने को चीज़ याद रखनी है वो क्या है, दैट इसमें हम जो छोटी सी चीज़ स्किप कर देते हैं वो ये स्किप कर देते हैं, हम इसे देखना भूल जाते हैं। ये है एन टर्मिनल और ये है मेरा सी टर्मिनल। आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एंटीबॉडी में किस साइड एन टर्मिनल है, किस साइड सी टर्मिनल है। तो दिस इज सी टर्मिनल और दिस इज एन टर्मिनल, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक अपन बोलते हैं एपिटोप, एक को अपन बोलते हैं पैराटोप। एपिटोप क्या होता है, एपिटोप और क्या होता है बेसिकली पैराटोप, राइट। अच्छा, एपिटोप पैराटोप क्या होता है, एपिटोप मतलब वो होता है जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग जो साइट होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिटोप। और पैराटोप क्या होता है, जो पैथोजन आया है उसके ऊपर भी तो कोई साइट होंगी ना, जिस साइट से क्या होगा, जिस साइट की हेल्प से ये किससे अटैच होगा, एंटीबॉडी से अटैच होगा, तो उन साइट्स को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैराटोप। तो पैराटोप क्या होती हैं, वही एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एंटीबॉडी को बाइंड करने वाली साइट्स। और एपिटोप क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, राइट। ये क्या होती है, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, राइट। एंटीजन, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट कितने हमारे पास, एंटीजन बाइंडिंग साइट किस पे प्रेजेंट होगी, ऑफ कोर्स एंटीबॉडी पे होगी। तो ये कितने होते हैं, ये सिर्फ दो होते हैं, राइट। वेराज जो पैराटोप होता है वो किससे प्रेजेंट होता है, पैथोजन। तो पैथोजन पे तो बहुत सारी एंटीबॉडी जुड़ सकती है ना, तो पैराटोप कितने होते हैं, बेसिकली दे आर मेनी। सो दिस इज अगैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है एपिटोप ज़्यादा होते हैं पैराटोप। तो रिमेंबर एपिटोप सिर्फ एंटीबॉडी से प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, वो सिर्फ दो होती हैं। और पैराटोप किससे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, और ये पैथोजन प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर मेनी नंबर, राइट। तो दिस यू हैव टू नोट डाउन। अब हम इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया है, नाउ रीड, वी विल रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। इन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो, और एक चीज़ और याद रखना कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, दो हैवी चेन है, मैंने इसमें दिखाया दो हैवी चेन है और दो कैसी हैं, लाइट चेन है। तो हैवी चेन दो है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, H2। लाइट चेन कितनी है, L से लाइट, तो लाइट भी कितनी है, 2 है। तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H2L2 टाइप स्ट्रक्चर, राइट। अब पढ़ते हैं, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज़ 4 पेप्टाइड चेन। ऑफकोर्स अभी बता दिया था। पेप्टाइड चेन क्या होती है, बेसिकली जो पेप्टाइड चेन मतलब जो ऐसी चेन जो कि किससे मिलके, अमाइनो एसिड से मिलके बनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन, करेक्ट। सो बेसिकली अमाइनो एसिड क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ कि कोई माला है, राइट, इफ देयर एंड ज्वेलरी, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से आपके मोती होते हैं, राइट। वो मोती मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा वो ज्वेलरी, वो पूरी माला बनाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक माला के जो माला का वो छोटा सा पार्ट होता है सर्कल जैसा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे मोनोमर, राइट। और बहुत सारे मिलकर तो क्या बोलेंगे, इस माला को क्या बोलेंगे, दैट दिस इज अ पॉलीमर। ऐसे ही अपनी जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन ही होती है, राइट। अब प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन जो जिस मोनोमर से मिलके बना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, दीज मोनोमर्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज अमाइनो एसिड।
तो आपसे पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए प्रोटीन किस मोनोमर से और पूरा मिलके क्या बनता है, वो जो लंबा सा स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन। तो इट मीन जो प्रोटीन है उसका मोनोमर कौन है, वो किससे मिलके बनी है, अमाइनो एसिड से। और अमाइनो एसिड जो होते हैं इनके बीच में क्या होते हैं, अभी जुड़े भी तो होंगे ना अलग, ये जुड़े होते हैं जिस बॉन्ड से हेल्प से, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है, राइट। और इस तरीके से पूरी चेन बनती जाती है और फाइनली प्रोटीन बन जाता है। तो एंटीबॉडीज़ तो प्रोटीन ही है, इसीलिए क्या होगा, एंटीबॉडीज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कितने कितने पेप्टाइड चेन होती है, 4 होती हैं, ये याद रखना 4 होती हैं, ठीक है। 4 कौन कौन सी, 2 हैवी और 2 लाइट, राइट। आगे लिखा है 2 स्मॉल कॉल्ड एज द लाइट चेन एंड 2 लॉन्गर कॉल्ड एज द हैवी चेन। तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया। ये याद रखना है ना, H2L2 स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, और जो हैवी और लाइट चेन्स होती हैं वो आपस में, मतलब जो पूरी प्रोटीन की जो लेयर होती है वो आपस में मिलती है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्यों, क्योंकि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है पूरी प्रोटीन, इसलिए अपन के क्या बोलते हैं इसको, पेप्टाइड चेन, राइट। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बेसिकली H2L2 टाइप होता है। H2 क्या बता रहे हैं, 2 हैवी चेन से, और L2 क्या बता रहे हैं, 2 लाइट चेन से। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में बेसिकली काफ़ी सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सी होती हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे इसे गम दे। कैसे याद रखेंगे, गम दे, राइट। GAM, गम दे, डी, गम दे। ये क्या है, पहली एंटीबॉडी है IgG, देन IgA, देन IgM, देन IgD एंड IgE, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, वो 5 एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडीज़ में प्रोड्यूस होती हैं, राइट। NCERT ने देखो आपको क्या क्या बताया, IgA है, यस IgA है, IgM है, यस IgM भी है, IgE है, यस IgE भी है, IgG है, IgG भी है, बट इन्होंने एक नहीं दी, कौन सी, IgD। तो IgD भी होती है। तो दिस ट्रिक विल हेल्प यू टू रिमेंबर दैट कौन कौन सी 5 एंटीबॉडीज होती है, कौन सी होती है, गम दे, करेक्ट। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडीज गिवन द फिगर 8.4। तो ये 8.4 फिगर थी, राइट। और ये जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या बोलते हैं कि दिस इज द कार्टून ऑफ, मतलब दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, दीज रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। लुक, अब जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, बेसिकली क्या होता है, रिस्पॉन्स जो होता है ना वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से रिस्पॉन्स होते हैं, एक होता है आपके दो टाइप की, एक होती है आपकी एंटीबॉडी बनना, राइट। एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोड्यूस होकर कहाँ जाती है, वो ब्लड में जाती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ की जो रिस्पॉन्स मिलता है ब्लड में जाने के बाद, उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, राइट। इसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल मतलब क्यों, बिकॉज ब्लड में प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या होता है इसका नाम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, करेक्ट। अब इसके अलावा ये तो क्या हो गया, एक तरीका हो गया एंटीबॉडी। दूसरा तरीका का हमारे अंदर कौन सा टाइप का इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब देखो ये जो पैरा है ना, इसको NCERT ने बहुत ज़्यादा से कंजस्टेड कर दिया है, कुछ ऐसे क्लियर नहीं किया है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारे इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप की होती है। पहला कैसा होता है, द वेरी फर्स्ट इज़ दी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरा क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी, या फिर क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो NCERT ने कौन सा टर्म यूज़ किया है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन ये ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स ही क्या है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये चीज़ उन्होंने नहीं यहाँ पे लिखी है, इसी वजह से क्या होता है, हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये बेसिकली कौन सी, ये क्या है, इसके फर्दर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इसका फर्दर टाइप है, या ये 2 टाइप अलग अलग हैं, ऐसा, राइट। तो अब आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है। पहला कौन सा होता है, जो एंटीबॉडी की वजह से होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनिटी। दूसरी कौन सी होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट, जो सेल की वजह से होती है, T सेल्स की वजह से। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं।
बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड में पाई जाती हैं। द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। तो आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली दे एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब इन्होंने बोला ना कि क्या बोला इन्होंने कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली 2 टाइप के। पहला कौन सा है उनमें से? द वेरी, और आगे उन्होंने नाम क्या दिए? एंटीबॉडी मीडिएटेड, राइट। तो ऐसे भी तो बता सकते थे कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, बट उन्होंने नहीं बताया। बट आपको याद रखना है कि किस किस टाइप का होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है। पहला क्या है कि एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा कौन सा है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। The second type is called as the cell mediated immunity। तो पहला क्या हो गया मेरा? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जैसे मैंने बताया कि जो हमारा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से आती है? एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? बेसिकली टी लिम्फोसाइट मीडिएट दी CMI। मतलब क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, करेक्ट। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बेसिकली एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से आ रही है? एंटीबॉडीज़ की वजह से आ रही है। वेयर एज जो सेल मीडिएटेड होती है, जिसको CMI बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये किसकी वजह से आती है? ये बेसिकली बिकॉज ऑफ टी लिम्फोसाइट की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? टी लिम्फोसाइट की वजह से आती है, राइट। नाउ वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन सेटिस्फैक्टरीली, ट्रांसप्लांटेशन द ओनली रेमेडी। अब क्या बता रहा है कि जब हमारी बॉडी में कोई, अगर हमारी जैसे किडनी है वो फेल हो गई, राइट, एंड तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या रहता है? किडनी है, आई है, हार्ट है, लिवर है, अगर ये फेल हो गया तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि हमें उससे ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। मतलब जैसे किडनी ख़राब होगी तो उसको किडनी को पहले रिमूव करना पड़ेगा और दूसरी किडनी को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना कि जब कोई पेशेंट है, लेट्स टेक बेसिकली कोई पेशेंट A है और कोई इंसान B था, तो पेशेंट A को प्रॉब्लम थी उसकी किडनी में, तो मैंने क्या किया कि उसकी जो किडनी थी उसको एक किडनी को रिमूव कर दिया और B की जो किडनी थी वो A की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन A के लिए तो वो अब क्या है? एक अनजान पार्ट है, राइट, वो तो उसको नहीं जानता। तो वो कोई भी चीज़ जो उसकी बॉडी से बाहर होगी वो उसके लिए क्या है? एक तरीके से एक वो एंटीजन है। तो एंटीजन होता है, तो ये जो एक बॉडी है वो उस किडनी को जो B से उसने ली है उसके अगेंस्ट क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि किडनी को रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन जो होते हैं वो मोस्टली सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जिसकी बॉडी में आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी दूसरे ऑर्गन को, तो उस इंसान की बॉडी उस ऑर्गन को कैसा मानती है कि ये कोई फॉरेन एजेंट